To everyone in today's classes. Today we discuss about the MCQ question of chapter 1 and 2 class 8. Okay, that is crop production and management and microorganisms related. जो भी आपके इसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के रिवाइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से. Number 1 is the kharif crop. The kharif crop sown in option number 1 is rainy season. Option number B is summer. Option number C is winter, and option number D is none of these. Okay, that is question number 1. Now Rabi crop sown in option number 1 is summer. Option number B is winter. Rainy. Rainy season, and option number D is none of this. Okay, that is question number 2. Now we write question number 3. Question number time period of Rabi crop. Okay, option number 1 is October to March. Option number B is March to April. Option number C is April to December, and option number D is none of this. Okay, that is question number 3. Now we revise from question number 1 to 3. The first one is the kharif crop sown in. खरीफ क्रॉप जो फसल होता है उसको कब लगाया जाता है. फर्स्ट ऑप्शन इज रेनी सीजन, बी इज समर, सी इज विंटर, एंड डी इज नन ऑफ दिस. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज रबी क्रॉप सोन इन. रबी क्रॉप को कब लगाया जाता है, रबी क्रॉप के फसल को कब लगाते हैं. ऑप्शन नंबर 1 है आपका समर, बी आपका विंटर, सी आपका रेनी सीजन, डी आपका नन ऑफ दिस. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप. टाइम पीरियड क्या रबी क्रॉप का. ऑप्शन 1 इज अक्टूबर टू मार्च, बी इज March to April, C is April to December, and D is none of this. That is question number 3. Now we write question number 4. Manure is option number 1 is organic substance, और बोल सकते हैं organic matter. Option number B is inorganic matter. Okay, option number C is both, and D is none of these. Now we write question number 5. Question number 5 is drip system. In drip system, water falls. Option number 1 is drop by drop. Okay, by hand pump. Okay, option number C is water bottle. Option number C is none of this. Okay, now we write question number 6.
Animals reared at homes or farms on a large scale. On a large scale, that is called option number A is animal home. Option number B is animal husbandry. Option number C is both, and option number D is none of this. Okay, that is question number 6. Now we write question number 7. It's from 4 to 6. Manure is, first option is organic matter, B is inorganic matter, C is both and D is none of this. आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस दिए, इसमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करके लिखना है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ड्रिप सिस्टम वाटर फॉल्स. ऑप्शन नंबर ए इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी इज बाय हैंड पंप, ऑप्शन नंबर सी इज वाटर बॉटल, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस. ओके, now we move to question number 6. Animals reared at farms on a large scale, that is called animals home, B is animal husbandry, C is both and D is none of this. ओके, इसका जो सेंटेंस है इसमें आप एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा बात को, कि इनकी जो फैसिलिटीज़ है, फूड भी दिया जा रहा है, शेल्टर भी दिया जा रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 7. Damaged seed would flow on top of water. Okay, it can be separated by, or it can be separated by, option number 1 is decantation, option number B is winnowing. Okay, that is N, double N. Okay, now C option is both, and D by heating. Okay, now question number 8. क्वेश्चन नंबर 7 के एक और ऑप्शन आप लिख लो, A and D both. Okay, now we write question number 8. Question number 8 is viruses, VIRUSCS. Viruses are, option number A, macroscopic, option number B, can be seen by naked eye, option number C is both, and D is none of these. Okay, that is question number 8. Now we write question number 9. Question number 9 is fermentation. Fermentation discovered by, option number 1 is Louis Pasteur, option number B is penicillin, option number C is Newton, and option number D is Robert Koch. Now we revise from 7 to 9. 7.1 is damaged seed would flow on top of water. आपने देखा होगा कि जो डैमेज सीड होते हैं, जैसे आपने चने को पानी में फुलाया होगा कभी खाने के लिए, तो जो डैमेज होता है जो चना, वो क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लो करने लगता है. ओके, इट कैन बी सेपरेटेड, उसको अगर सेपरेट करना है, सेपरेट बाय, ऑप्शन नंबर 1 इज डिकेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज विनोइंग, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी. बोथ में आप क्या कंसिडर करना है, ए एंड बी, and option number D is heating and E is A and D, both options are correct. Okay, now question number 8 is viruses are,
Option number 1 macroscopic, B can be seen by naked eye, C1 is both A and B, and D is none of these. Okay, that is question number 8. Now we move to question number 9. Fermentation discovered by. Option number A is Louis Pasteur, option number B is penicillin, option number C is Newton, and option number D is Robert Koch. Okay, 4 ऑप्शन से आपको एक आंसर को सिलेक्ट करना है, 2 आंसर आप नहीं लिखेंगे. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन. चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आगे देंगे तो 1 2 4 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड जो रहते हैं तो वो आपको मिलेंगे बेसिक्स क्लासेस से 6, 7, 8, 9, 10, और ये सभी क्वेश्चन जो है आपको जनरल साइंस में भी आते हैं. ठीक है. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 10. इन द ब्लैंक्स डैश डिस्कवर्ड द वैक्सीन. Dash discovered the vaccine for smallpox. Okay, option number 1 is रॉबर्ट कॉच साहब जो थे, क्या उसने किया था डिस्कवर्ड. ऑप्शन नंबर बी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. Option number C is Coach Sirko, and option number D is Edward Jenner. Okay, that is question number 10. Now we write question number 11. Question number 11 is question number 11 is कन्वर्जन. आपने तो बहुत सारे कन्वर्जन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे मिलेगा, केमिस्ट्री में तो मिलेगा ही मिलेगा. कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर 1 इज फर्मेंटेशन. ऑप्शन नंबर बी इज कन्वर्जन. Conversation. Okay, option number C is chemical, and option number D is fertilization. Okay, that is question number 11. Now we write question number 12. Question number 12 is based on figure. आपको इमेज दिख रहा है, उस इमेज को देख के बताना है कि इमेज किस चीज़ का है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. ओके, दिस इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आने के चांसेस भी हैं, और इस इमेज के द्वारा आपको 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस में मदद करेगी, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में. ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. नाउ आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, ऑप्शंस का वेट नहीं करिए. क्वेश्चन नंबर 12 को डायरेक्ट आप इमेज देख के आंसर बताइए. ठीक है. नाउ वी रिवाइज फ्रॉम 10. डैश डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन है, ओके, वो किसने डिस्कवर किया था. ओके, ये भी एक समय महामारी थी, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा. एक समय ऐसा था कि पूरे गाँव के गाँव लोग मर जाते थे. ठीक है. उसके बाद वैक्सीन आई. तो ये कौन से ऐसे महापुरुष थे, ठीक है, जिन्होंने इसको क्या किया, डिस्कवर्ड किया वैक्सीन का, बताना है. ए नंबर इज रॉबर्ट कोच, बी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी इज कॉच सिरको, एंड डी इज एडवर्ड जेनर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11. कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर 1 इज फर्मेंटेशन, बी इज conversion, C is chemical, and D is fertilization. Okay, and question number 12 is based on figure. Now we move to question number 13. Very important. Dash mosquito. Okay, there's fill in the blanks. Dash mosquitoes carries the parasite. Okay, dash mosquito carries the parasite. पैरासाइट ऑफ डैश. आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे और दोनों में आपको बताना है कि कौन सा मॉस्किटो और कौन सा पैरासाइट को कैरी करता है. आप इस ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका टाइफाइड. ओके, टाइफाइड फॉर द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड. ओके, द सिंबल ऑफ एंड, टाइफाइड एंड डेंगू. ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी इज मलेरिया.
ठीक है, कॉमन है मलेरिया, सबको कभी ना कभी अपने लाइफ में हुआ होगा, ठीक है, बट किस मच्छर के द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। एंड फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको ऑप्शन दिया गया, मलेरिया कैरीज द पैरासाइट ऑफ टाइफाइड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज फीमेल एडिस मॉस्किटो। Female Aedes mosquito carries the parasite of malaria. Okay, it is for second option. Okay, and now the D option is Tas mosquito. Okay, female Anopheles mosquito. Carries the parasite of malaria. Okay, now वी राइट क्वेश्चन नंबर 14। मलेरिया के लिए एक दवाई आती है क्लोरोक्विन, ठीक है, जब मैं स्कूल टाइम पे था तो डिफेंस यूनिट पे क्लोरोक्विन की गोली ना बांटी जाती है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे मलेरिया के जो पेशेंट थे वो ज़्यादा थे और बहुत सारे लोग मर भी जाते थे क्योंकि वहाँ पे एक ब्रेन मलेरिया करके होता था, मतलब कि नॉर्मल मलेरिया किसी को जल्दी नहीं होता था, वहाँ पे हुआ मतलब कि बहुत रिस्क होता था। तो वहाँ पे क्या होता था कि वीकली क्लोरोक्विन की गोली दी जाती थी, घर घर बांटा जाता था और पर व्यक्ति मतलब कि जितने पर्सन घर में है उसके हिसाब से 2-2 गोली दी जाती थी, ठीक है। तो वो खाना रहता था चाहे आपको मलेरिया हो चाहे ना हो, ठीक है। तो क्लोरोक्विन की जो गोली है मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, बट ये आपको नहीं खाने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मैं नाम ये बता रहा हूँ कि ये टेबलेट है जिसका यूज़ मलेरिया पेशेंट को देने के लिए किया जाता है। ओके, क्लोरोक्विन की गोली। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था एक दिन कि एन ट्यूब को टाइप, ए फॉर एंथ्रेक्स, सी को फॉर क्लोरा, ट्यूब फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइप फॉर टाइफाइड। ये चारों बीमारी एक ही चीज़ से होता है, वो आपको मैंने हिंट दे दिया, आप बताओगे, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय, ऑप्शन नंबर 1 इज वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी इज both A and B, and option number D is none of this. Okay, that is question number 14. Now we write question number 15. Question number 15 is citrus canker caused by option number 1 is bacteria, option number B is virus, ऑप्शन नंबर सी इज फंगी एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। ओके, अगर आपको लगता है कि मैंने जो ऑप्शन दिया है वो सारे के सारे गलत है, देन आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी। नाउ वी रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। डैश मॉस्किटो वाला मैंने चर्चा कर दिया, दोबारा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए इज वायरस, बी इज बैक्टीरिया, सी इज बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट, डी इज नन ऑफ दिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है एक डिजीज़ है जो किसके द्वारा होता है ये तो आपको ऑप्शंस में बताना है, ठीक है। बट ये सब जो बीमारी थी एक समय काफ़ी विस्तार रूप से फैलता था और लोग काफ़ी डरते भी थे क्योंकि उस समय ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब तो ट्रीटमेंट भी आ गया है, तो कह सकते हैं कि ये डिजीज़ भयानक तो है, डेंजरस तो है, बट ट्रीटमेंट है, अभी लोग बच सकते हैं आसानी से अगर ट्रीटमेंट समय पे हो जाए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज सिट्रस कैंकर कॉज्ड बाय, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी ऑप्शन इज वायरस, सी इज फंगी एंड डी इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो है प्लांट डिजीज़ है, मैंने आपको हिंट दे दिया, ये प्लांट डिजीज़ हैं, लेकिन आपको बताना है कि किसके द्वारा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपको याद है आप टिक करो, आंसर दो, ठीक है। और आपको गलत आंसर नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि गलती तो आपसे होगी, मान लो गलती होगी, बट जानबूझ के नहीं देना है, क्योंकि होता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते ना कि जस्ट अटेम्प्ट कर लिया एग्जामिनेशन को। आप प्रिपेयर करो, आपको समय दिया जाता है, मैं 2 दिन पहले आपको बताता हूँ कि इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। क्योंकि होता है क्या है कि सीरियसली जो एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे 6, 7, 8 में होते हैं उनको पता नहीं होता है कि पढ़ाई करना क्यों है,
करना क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, उस समय काफ़ी सीरियसनेस जो होती है ना, मतलब कि नहीं पढ़ाई को लेते हैं। बहुत सारे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है कि मोटिवेशन नहीं होता है, ठीक है, और इंस्पायरेशन जो होता है वो नहीं होता है बच्चों में, जिसके कारण क्या होता है कि वो बहुत सारी जो चीज़ें होते हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि पहले आप तैयारी करो, ठीक है, हर चीज़ का टाइम हो जाता है, पढ़ाई करने का टाइम होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो और अपने भविष्य में कभी भी किसी चीज़ को सीरियस लिया करो, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं लोगे तो वो काम करने का मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो काम करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 16। वाई measles caused by, option number A is virus, B is bacteria, and C is rainwater, and option number D is all of these. Okay, सर इसमें 5 ऑप्शन दीजिए ताकि सभी बोल्ड हो जाए। चलो मान लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बोल्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज नन ऑफ दिस। ओके, नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 17। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शर्मा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे, मेहनत करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी caused by okay, caused by option number A is bacteria, option number B is virus, option number C is both, and D is none. Okay, that is question number 17. Now we write question number 18 is which one is preservatives. Okay, option number A is sodium benzoate. Okay, sodium benzoate. Option number B is salt. Option number C is sodium metabisulfite. Sodium metabisulfite. एंड ऑप्शन नंबर डी इज बेटा ऑल ऑफ दिस। मेरे कमांडो, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है और जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, एक को गोली मार देना है, छोड़ना नहीं है, एकदम शूट कर देना है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज बेस्ड ऑन फिगर। आपके सामने एक फिगर दिया गया है, ये कौन सा है फिगर, ये आपको बताना है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, इस फिगर को देख के बताइए। आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, सो डोंट वेट फॉर दी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 19 को ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आंसर बताइए क्या किस चीज का फिगर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 को बताना है। नाउ वी डिस्कस मीजल्स काउज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 16 इज वायरस, B bacteria, C rainwater, D all of these, and E is none of this. That is 16. Now question number 17 is yellow vein mosaic of bhindi caused by A is bacteria, B is virus, C is both A and B, and D is none of this. Now question number 18 is which one is preservatives. Option number A is sodium benzoate, question number B, option number B is salt, option number C is sodium metabisulfite, option number D is all of this. ठीक है, क्वेश्चन 19 आपका फिगर बेसिस था। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 20। केस ऑफ pasteurized milk, in case of pasteurized milk, it is heated above. Option number 1 is 70 degrees Celsius. Option number B is 80 degrees Celsius.
Option number C is 71 degrees Celsius and option number D is none of this. Okay, now we write question number 21. Question number 21 is very easy, that is discovered by option number A is Newton, B is option number C is Louis Pasteur and option number D is none of this. Okay, question number lives in the roots of option number A is leguminous plants. A is leguminous plant. Option number B is pea plant. Option number C is A and B both, and option number D is none of these. Okay, now question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 इज बेस्ड ऑन फिगर. क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक फिगर दिख रहा है. इस फिगर को देख के बताना है कि ये कौन सा फिगर है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो आप इसको फिगर देख के बताएंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 23. नाउ वी रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20. इन केस ऑफ प्रेशराइज्ड मिल्क is heated above, it is heated above 70 degrees Celsius, that is option number 1. Next one is 80 degrees Celsius, C is 71 degrees Celsius, D is none of these. Okay, now question number 21 is pressurized process discovered by A is Newton, B is P.K. Kumawat, C is Louis Pasteur and D is none of these. ओके, तो आपको क्या दिया गया, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको क्या करना है, एक ऑप्शंस को टिक करना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज राइजोबियम लाइव्स इन द रूट्स ऑफ. ऑप्शन नंबर 1 इज लेगुमिनस प्लांट्स, बी इज पीस प्लांट, ऑप्शन नंबर सी इज ए एंड बी बोथ एंड डी इज नन ऑफ दिस. और क्वेश्चन नंबर 23 था वो किस पे था, फिगर पे बेस्ड था. तो आपको क्या करना है कि किसी एक ऑप्शंस को आपको टिक करना है. नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 24. 4 इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बाय, अल्कोहल is produced by the help of, produced by the help of, option number A is yeast, option number B is bacteria, option number C is virus and option number D is none of these. Okay, that is question number 24. Now we write question number 25. Question number 25 is yeast is used in the productions of, used in the production of, option number 1 is, that is A, alcohol, option number B is apple, option number C is brandy and option number D is none of these. Okay, that is none. Okay, now we write question number 26. Question number 26 is female Aedes mosquito. Female Aedes mosquito is responsible for, option number 1 is, that is A, malaria. Okay, option number B is dengue, option number C is both A and B,
बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज, बेटा डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. Okay, these are collected from the NCERT based chapters. Now the question number 24 is alcohol is produced by the help of, that is yeast, B is bacteria, C is virus, and D is none of this. Okay, that is question number 24. 25 is yeast used in the productions of, okay, option number A alcohol, B apple, C brandy, and D none. Okay. Question number 26, female Aedes mosquito is responsible for, option number A malaria, option number B dengue, option number C both A and B, and option number D is none of this. करना क्या है आपको, एक पे क्या करना है, सिलेक्शन करना है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसको कहाँ कर देना, सिलेक्ट करके अपने कॉपी में लिखना है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. ओके, very easy based on class 6 or 7. Spoiling of food. Spoiling of food is, option number 1 is physical change, option number B is chemical change. Chemical change, option number C is chemical reactions, and option number D is both B and C. Both B and C. That is question number 27. Now we move to question number 28. ओके, जरा सा और रुकेंगे, 2 क्वेश्चन और है, 30 तक जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन फिगर. ओके, आपके सामने एक फिगर दिख रहा है जो कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 28. ओके, तो 28 को आप क्या करेंगे, फिगर देख के नाम बताएंगे. इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी के पेज भी पलटे होंगे तो आपको पता होगा कि ये कौन सा फिगर है. ठीक है, तो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपने देख लिया होगा, लिख भी लिया होगा बढ़िया से. चलते हैं 29 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 29 इज, mosquito breeding. Mosquito breed in, option number 1 is alcohol, option number B is algae, option number C is water, and option number D is both B and C. Okay, now we write question number 30. That is the last question. आपने बहुत ही वेट किया होगा 30 तक आने के लिए, लेकिन ये मेहनत आपके लिए है. ठीक है, नाउ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सोयाबीन. सोयाबीन is an example of option number A kharif crop, option number B rabi crop, option number C both A and B, and last one is none of these. जो आपने गेस भी किया होगा कि मैं लास्ट ऑप्शन में क्या देता हूँ, नन ऑफ दिस. लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस के वैल्यू नहीं है, बहुत सारे के क्या होते हैं आंसर, नन ऑफ दिस होते हैं. ठीक है, दीज आर 30 क्वेश्चन जो आपके बुक्स में से दिए गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कहीं भी इधर उधर की बातें नहीं की गई है. ठीक है, तो आपको जो आंसर आता है, हो सकता है बहुत सारे आंसर्स आप नहीं दे पाएंगे, तो ट्राई करना है कि उसमें से कौन से आंसर आपके हो सकते हैं. स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं. 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कोई ना कोई एक आंसर जरूर होगा. तो आपको लगता है कि जो आंसर नहीं होगा उसको आप छोड़ते चले जाओ. मतलब 4 ऑप्शन से हो सकता है 3 में आपको लग रहा हो नेगेटिव है, लास्ट में आप 2 ऑप्शन से फंसोगे. जो आपको ज़्यादा लगता है प्रोबेबिलिटी है कि ये आंसर हो सकता है, देन आप उसको लिखिए. ठीक है, छोड़िए मत. जहाँ नेगेटिव मार्किंग की बात आती है, कोई भी एग्जाम आप आगे देते हो, देन आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में कि कितना क्वेश्चन आपको आता है. रिस्क भी, अगर इंसान रिस्क भी लेता है तो 5-6 क्वेश्चन पर रिस्क लेता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है. नहीं तो उसका रिस्क लेना क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग में रिजल्ट चला जाता है. ठीक है, तो देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग, तो आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है.
ठीक है, तो एवरीवन नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस, और कोई भी आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, तुरंत जवाब हो सकता है ना मिले, लेट नाइट तक वेट करिए, नेक्स्ट डे तक वेट करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, नहीं मिलने के बाद फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चैप्टर 1, 2 और 3 की बात इसमें नहीं किया गया। 1 और 2 में जो भी प्रॉब्लम है आप बात करेंगे। उसके बाद जो भी मैंने आपको शेड्यूल बताए कि इस दिन में कौन सा एग्जाम होगा, मैंने पहले दे दिया था ग्रुप्स में, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, तो कल मैंने दिया था डेट इज 28 फेब को दिया था कि आपका चैप्टर 1, 2 का एग्जाम मॉर्निंग 8 o'clock। ओके, तो कल आपको ये मिलेगा, मतलब जब आप ये क्लासेस देख रहे होगे तो 28 फेब ही होगा वो। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जो भी शेड्यूल आपके दिए गए उसी हिसाब से आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ये पहले ही आपको बता दिया गया ताकि आपको सडन शॉक ना लगे कि सर हमेशा एग्जाम लेते हैं। ये एग्जाम्स जो ले रहा हूँ 2-2 दिन के गैप पे ले रहा हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छा हो सके, रिवाइज का टाइम मिल सके और किसी प्रकार का प्रेशर ना हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।